کہا رب تعالیٰ نے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو بلایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ حساب کتاب کے لیے گواہ لائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں قیامت کے مناظر کے احوال بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کے دن کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یا ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اس چھوٹی سی صورت جس میں جو ہدایت موجود ہے نہایت ہی قابل غور ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الزلزلہ نصف قرآن کے برابر ہے، یعنی اس میں دی گئی ہدایت نصف قرآن کی ہدایت کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاظۃ الجامعۃ ہے، یعنی کہ مختصر مگر نہایت ہی جامع۔ اس سورت کی آخری آیت بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی انتہائی اہم اور طاقتور آیت کریمہ ہے۔ اس طرح سورۃ الحج کے مندرجہ ذیل آیات دلوں کو ہلانے والی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الحاقات 18 اور 13 کا ترجمہ ہے کہ پس جب کہ سور میں ایک بار پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بکھرا ہوا ہوگا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی ہر چیز مدہوش اور بے ہوش ہو جائے گی سوائے چند فرشتوں کے، پھر یہ فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورۃ رحمان 27-26 کا ترجمہ۔ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف
तेरे रब की ज़ात बाकी बचेगी जो अज़मत और इनाम वाला है। जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो रूहें जिस्मों में वापस आ जाएंगी, फिर तमाम मखलूक़ात ज़िंदा खड़े हो जाएंगे और हिसाब किताब किया जाएगा। कहा रब ताला ने, और सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। नामा अमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक फैसले कर दिए जाएंगे और वो जुल्म ना किए जाएंगे। और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। हिसाब किताब के लिए गवाह लाए जाएंगे। सूरह यासीन 65 में फरमाया कि हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाहियाँ देंगे और इन कामों का जो वो करते थे। इस आयत से ये बात साबित होती है कि एक आदमी अपना गुनाह दूसरों से छुपा सकता है लेकिन अपने बदन के अज़ा से नहीं छुपा सकता। क़यामत के दिन बदन के यही आज़ा गवाही देंगे। ये गवाही इंसान के ख़िलाफ़ होगी। अगर ये आयत वाक़या हम समझ लें तो फिर हम कहीं भी कोई गुनाह करने की जुर्रत न करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी जिससे उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह इंसान का गोश्त और हड्डियाँ गवाह की तरह बातें करेंगी। गुनाहगारों का खाना क्या होगा? सूरत अद-दखान 43-50 में फरमाया कि बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जो तलछट की तरह होगा, पेट में खोलता रहेगा जैसे खोलता पानी जोश खाता है। इसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए बीच जहन्नम तक पहुंचा दो, फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अज़ाब पहुंचाओ या बहाओ। इससे कहा जाएगा, चखता जा, तू तो बड़ी इज़्ज़त वाला और बड़े इकराम वाला था। यही वो चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे। इसके बरअक्स सच्चे ईमान वालों के साथ अलग मामला किया जाएगा। देखिए सूरत अज़-ज़ुख़्रुफ़ 68-73 में फरमाया कि मेरे बंदो, आज तो तुम पर कोई खौफ और हरास है और ना तुम बददिल और गमज़दा होगे। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो फरमाबरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राज़ी खुशी जन्नत में चले जाओ। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा। इनके जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करें और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएं सब वहाँ होगा और तुम इसमें हमेशा रहोगे। यही वो बहिश्त है कि तुम अपने अमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। इसी तरह सूरत फसलत 30-32 देखिए। कहा रब ताला ने कि वाक़या जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी पर कायम रहे, उसके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो बल्कि इस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया था और तुम्हारी दीनवी ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे रफ़ीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है।
गफूरुर रहीम, माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। यहाँ पर जो नज़लन का लफ्ज़ आया है इसके मानी ये हैं कि मेहमानदारी के तौर पर शुरू में अल्लाह की बहुत सारी नेमतें नाजिल होंगी, जैसे एक मेहमान को बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें पेश की जाती हैं, चाहे वो मांगे या ना मांगे। इसका ये भी मतलब होगा कि ये बयान करदा नेमतें तो शुरू में मेहमान को खुश आमदेद कहते हुए मिलेंगी, इसके बाद यहाँ से तुमको क्या क्या मिलेगा वो अजीम से अजीम तर होगा और उसकी कोई गिनती न होगी। ज़ैद बिन असलम ने रवायत की है कि जो कि दर मंशूर में दर्ज है, मौत के फरिश्ते मजबूत ईमान वालों के पास अच्छी खबरें लेकर 3 बार आएंगे, पहले मौत के वक्त, फिर कब्र में और आखिरी हशर के मैदान में। ये फरिश्ते अच्छे ईमान वालों के दुनियावी साथी थे, इनके दिलो दिमाग में अच्छी सोच और फिक्र डाला करते थे और तकलीफ़ और दुख के वक्त इनको सब्र की तलकीन करते थे। यही फरिश्ते हशर के मैदान में अहले ईमान को जन्नत में दाखिल होने का परवाना देंगे। इसके बरक्स काफिरों को फरिश्ते किस तरह जहन्नुम की तरफ हाँकेंगे। सूरत अल-ज़मर में फरमाया, काफिर ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की तरफ हंकाए जाएंगे। जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे, इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगहबान इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे। ये जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है, लेकिन अज़ाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। कहा जाएगा कि अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, यहाँ हमेशा रहेंगे, पर सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। इसके बरक्स फरिश्ते अहले ईमान को खुशखबरी सुनाएंगे और मुबारकबाद देंगे और अहले ईमान इस पर फ़ख्र करने के बजाय अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे। कहा रब ताला ने कि और जो लोग अपने रब से डरते थे उनके ग्रोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगहबान इनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें मकाम करें। बस अमल करने वालों का यही अच्छा बदला है। यहाँ गौर फरमाने की बात है कि लोगों को ग्रुप की शक्ल में जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। ज़मर का मतलब ग्रुप या जमात होता है। मदरजा वाला नुक्ता बहुत अहम है, इस वजह से इस लफ्ज़ को इस सूरत का नाम दिया गया है। आखिरत में भी हर एक ग्रुप का अंजाम इकट्ठा होगा। बस अगर हम अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे और नाफ़े इल्म के मतलाशी रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत के बेहतरीन उम्मीदवार बन जाएंगे। गो ये याद रहे कि बिलाखिर जन्नत में दाखिला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रहमत के बाइस होगा। हम अल्लाह ताला से उसके रहमो करम और फजल और एहसान की भीख मांगते हैं। आमीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। लाखों दरूद व सलाम हमारे आका मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम औलिया और तमाम बुजुर्गान दीन पर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार।